Good morning, Awaken Dune community. सुप्रभात अवेकन दून कलीसिया। Okay, that was a very slow good morning. और ये बहुत ही धीमा सुप्रभात Can था। I hear a loud good morning? क्या मैं जोर से सुप्रभात सुन सकता हूँ? Good morning. मॉर्निंग। Can you greet someone next to you? आप अपने बराबर वाले को ग्रीट कर सकते हैं। Say good morning, good to have you this morning. आप कह सकते हैं हमें आपको देखकर यहाँ अच्छा लगा। It is so good to be back. और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे वापस आकर। The visitors who are here for the first time, I was away for 14 days trip. और जो लोग यहाँ पे नए हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मैं 14 दिन की ट्रिप के लिए बाहर था। Just want to show you some pictures and give you some update of my trip. और मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ, कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ अपने ट्रिप को लेकर। Not that I had a very touristy time. और ऐसा नहीं है कि मैं बस घूमने फिरने वहाँ गया था। Because I went with a purpose. God took me there for a reason. और मैं एक उद्देश्य के साथ वहाँ गया था, परमेश्वर मुझे एक उद्देश्य के साथ वहाँ ले गया। You all know I stood here and said, I have no ticket, I have no money for the ticket, I only applied visa in faith. और मैंने आप सबको यहाँ खड़े होकर बताया था ना ही मेरे पास टिकट है ना ही मेरे पास टिकट के पैसे हैं और मैंने सिर्फ वीजा विश्वास में अप्लाई किया था। And I remember sitting on that Wednesday afternoon, I didn't have money, full money to book a ticket. और जब मैं बुधवार की शाम को बैठा था तो मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं थे उस टिकट के But लिए। God provided because He is faithful. पर परमेश्वर ने प्रदान किया क्योंकि वह विश्वास योग्य So I है। left to go to South Africa. This is South Africa. I went to a place called Cape Town, specifically to a place called Muizenberg. और मैं साउथ अफ्रीका गया था केप टाउन में और खासकर ये जगह म्यूजिनबर्ग में। It's beautiful. You can see the pictures. It has beach and the mountains. और बहुत खूबसूरत है, वहाँ बीच भी है और पहाड़ भी है। There is a friend of mine. I'll show you his picture and his wife's picture. They are pastors. They lead a church there. I'll show you the picture और of the मेरे church as दोस्त well. हैं, उनकी पत्नी और वो वहाँ पे एक कलीसिया की पासबानी करते हैं। This was my second trip because I had been to Cape Town in 2013 and I proposed Tressa just right where I am standing. और मैं 2013 में यहाँ गया था और मैंने ट्रेसा को प्रपोज किया था यहाँ। So they took me there to click a picture so that I can send it to her. और वो मुझे वहाँ पिक्चर खींचने के लिए गए कि मैं उन्हें भेज सकूं। God has been so good to us. और परमेश्वर हमारे लिए साथ बहुत भला रहा है। And my host, they really took care of me. This is Bay City Church. और मेरे जो होस्ट थे उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये बे सिटी चर्च है। And they welcomed me. I took this attire for my friend. That is my friend Sheldon. और ये वो मुझे वहाँ ले गए और ये जो कोट है मैं अपने दोस्त शेल्डन के लिए ले गया था। That was the biggest size I took, but you see, can't fit him. और मैं सबसे बड़ा साइज ले गया था, फिर भी आप देख सकते हैं उन्हें फिट नहीं आया। And then I'll show you some more pictures about Sheldon and Kathy. This is Sheldon and Kathy. और ये शेल्डन और कैथी है। Sheldon and Kathleen, her name is. और शेल्डन और कैथलीन उनका नाम है। So we had gathered a group of leaders. Sheldon had gathered some of the pastors and some of their leaders, mainly from South Africa and a small country called Lesotho. और वहाँ उन्होंने कुछ अगुवाओं को और पासबानों को इकट्ठा किया और खासकर लुसिडू नाम की एक जगह से। And we were having this small conference together. और ये छोटी सी कॉन्फ्रेंस हमने साथ में करी है। We were discussing some of the crucial aspects of present day church. और हम कुछ जरूरी पहलू को का डिस्कशन कर रहे थे आज की कलीसिया को लेकर। Okay, we've not reached to Dubai yet. I'm just sharing about South Africa. और मैं आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बांटना चाहता हूँ I पहले। also had an opportunity to meet my spiritual father, who also happened to be in Cape Town. Can you go few pics before? और मुझे अपने आत्मिक पिता से भी मिलने को मिला जो केप टाउन में रहते हैं। That is Steve Oliver. और इनका नाम है स्टीव ऑलिवर। He is an apostle to a group of churches. और ये एक अपोस्टल है कुछ समूह कलीसियाओं के उनके लिए। He is the one who drew gift out of me. और ये वो है जो वरदान है मेरे अंदर से उन्होंने निकाला। He shaped me. उन्हें मुझे आकार दिया। He saw calling over my life. और उन्होंने वो बुलाहट मेरे ऊपर देखी। And it was an amazing time to meet with him. और ये बहुत ही अद्भुत समय रहा उनसे मिलने पर। He believed in me things that I did not believe in myself. और उन्होंने वो चीजें मेरे लिए विश्वास करी जो मैं अपने बारे में नहीं कर सकता So था। that's my spiritual father who raised me.
और ये मेरे आत्मिक पिता हैं जिन्होंने मुझे बढ़ाया। And it was a wonderful time to discuss certain things that has happened even in past. और उनके साथ वो समय बिताने में और बातें करने में जो भूतकाल में आए उनके So, बारे में बहुत अच्छा लगा। At this conference, we were talking about justice, righteousness, and the wisdom of God. और ये इस कॉन्फ्रेंस में हम न्याय, धार्मिकता और परमेश्वर की बुद्धि की बात And कर रहे I थे। went there thinking I will, learn a lot. I will, really grow and come back and. और मैंने ये सोच के गया था कि मैं वहाँ पे बहुत कुछ सीखूंगा और बहुत कुछ चीज़ों में बढ़कर आऊँगा। But just as our vision is discipling nations. और जैसा कि हमारा दर्शन है राष्ट्र को चेला बनाना। Do you know that a small church in Dehradun can disciple people from different nations? और आपको पता है एक छोटी कलीसिया देहरादून से राष्ट्रों को चेला बना सकती And है। I was contributing in this group some of the things, some of the wisdom, and they were getting amazed. और मैं कुछ चीजें जो मैंने उन लोगों से बांटी, कुछ ज्ञान की बातें, वो बहुत ही अचंभित रह गए। My friend just told me on Saturday because he wasn't sure that I will be there. और मेरे दोस्त ने सैटरडे को बताया, उन्हें पता नहीं था कि निश्चित नहीं था कि He मैं आऊंगा asked या me नहीं। to speak to group of men in the evening. और उन्होंने कुछ पुरुषों के समूह से मुझे बात करने को कहा शाम को। And some of the things I was ministering or speaking to them from the word of God. और कुछ ऐसी बातें जो मैं परमेश्वर के वचन से उन्हें बता रहा था, सिखा रहा था। Men were getting so touched by God. और वो पुरुष लोग इतने ज्यादा छुए गए परमेश्वर के द्वारा। One person was new for the very first time and he was tremendously blessed. और एक व्यक्ति नया था, वो पहली बार वहां पे थे और वो बहुत ही अद्भुत रीति से Because आशीषित हुए। he felt condemned growing up in Christian home. क्योंकि वो एक मसीह घर में पड़े बढ़ते हुए उन्हें दोषी महसूस होता He था। felt that he is not doing enough. उन्हें ऐसा लगता था वो काफी नहीं कर रहे हैं। He has children. और उनके बच्चे भी हैं। But then he realized certain things that are at work in his life. पर उन्हें महसूस किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके जीवन में कार्य कर रही At हैं। this conference, I don't know if you see that there was a prophetess who actually prophesied to the government of South Africa. और वहाँ पे एक भविष्यवक्ता थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका की सरकार के लिए भविष्यवाणी करी। She goes to where officials of government of South Africa gathers and she gives them the word of the Lord. और वो वहाँ पे गई जहाँ पे वहाँ के अधिकारी लोग मिलते हैं और उन्होंने वहाँ परमेश्वर के वचन को बांटा। She is not in the picture because she had left early. और वो पिक्चर में नहीं है क्योंकि वो जल्दी चली गई थी वहाँ से। And she prophesies over people as she is led by the Lord. और वो लोगों के ऊपर भविष्यवाणी कर रही थी जैसे जैसे परमेश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। And when they prayed for me, she brought a word for me. और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो वो मेरे लिए एक वचन को लेकर आई। And you know what I believe, prophetic word is not for the first time. If you are hearing from God already, prophetic word is the confirmation. और मैं मानता हूँ जो भविष्यवाणी है वो परमेश्वर की ओर से पहला वचन नहीं है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर से लगातार सुन रहे हैं तो वो एक सिद्ध करने वाली बात है। Because God doesn't speak through others to you, he loves to speak directly to you first. क्योंकि परमेश्वर आपसे दूसरों के द्वारा ज्यादा बात नहीं करना चाहता, पहले वो व्यक्तिगत तौर से सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। And this lady prophesied, said, I see an apostolic gift over you in the region where you are placed. और उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर एक अपोस्टल होने का वरदान देखता हूँ उस जगह पर जहाँ पे आपको परमेश्वर ने रखा है। You know, we registered our church as Life Awakening Network, thinking that we will come alongside other churches and strengthen them as well. और हमने अपने जो चर्च को रजिस्टर किया था लाइफ अवेकनिंग नेटवर्क के नाम से कि हम और कलीसियाओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे। We were already feeling that this is what exactly God is calling और us. हम यही महसूस करते कि इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है। You see, you may have understood apostles who has like lot of titles in front and they carry such an aura and authority and they said this is what must happen, then it must happen. और आपने अपोस्टल्स को देखा होगा, आपको लगता होगा बड़ा सा नाम लेकर चलते हैं, बहुत बड़ा अधिकार है और ऐसे लोगों पर बोलते हैं कि ऐसा होगा। Or they travel a lot and they get to enjoy so many things. और वो बहुत सफर करते हैं और बहुत सारी चीजों का उन्हें आनंद लेने मिलता है। That's not the kind of apostle we read in the Bible. पर ऐसे अपोस्टल हम वचन में नहीं पाते हैं। Paul says, I am the scum of the earth. और पौलुस कहता है मैं तो एक धूल के समान हूँ। He says, I am a bond servant of Jesus. वो कहता है कि मैं तो जन्म से उसका गुलाम हूँ। He says, I am a slave. वो कहता है मैं गुलाम हूँ। And he
went through shipwrecks, he went through sufferings. और उन्हें देखा जहाज को डूबते हुए और उन्हें इतनी सारी परिस्थितियों को देखा। So greater the calling, the greater the battle, greater the struggles. और जितनी बड़ी बुलाहट उतने बड़ा आपका युद्ध होगा, उतना बड़ा आपका And संघर्ष I होगा। knew this is the Lord's calling over my और life. मैं जानता था ये परमेश्वर की बुलाहट है मेरे जीवन के And I ऊपर। know that God is doing something greater with Awaken Dune और community. मैं जानता हूँ परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है अवेकन दून कम्युनिटी के द्वारा। Can I hear a loud amen? क्या मैं एक आमीन सुन सकता हूँ? Do you even believe that? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? A small church in Dehradun can impact a nation. और एक छोटी सी कलीसिया देहरादून में राष्ट्रों पर प्रभाव डाल A सकती small है। church from Dehradun, some group of believers, after God, seeking Him. और कुछ छोटे सा समूह देहरादून का जो परमेश्वर के पीछे परमेश्वर को खोजते हैं, Can spark a revival in nations. वो हमारे पूरे देश में बेदारी को ला सकते हैं। So I end up being a blessing there when I was in South Africa. और मैं वहाँ पे एक आशीष बना उन लोगों के लिए जब मैं वहाँ था। Some of the things I shared about our church, we showed you guys there on the screen, by the way. और मैंने अपनी कलीसिया के बारे में बांटा और आप सबके बारे में उन्हें दिखाया वहाँ पर। We showed you a highlight. हमने एक हाईलाइट वीडियो This दिखाया is where we gather. This is a small church. और हम यहाँ मिलते हैं और यहाँ छोटी सी कलीसिया This है is how we began with one person. और कैसे हमने एक व्यक्ति के साथ शुरुआत And की now God has taken us to this small, beautiful community. और परमेश्वर अब हमें इस छोटी सी कम्युनिटी में लेकर And आया I है। shared about some of you how you selflessly give yourself to serve the beautiful bride of Jesus. और मैंने बताया आप में से कुछ के बारे में कैसे आप बिना स्वार्थ के उस खूबसूरत परमेश्वर की जो दुल्हन है उसकी सेवा करते हैं। And your testimonies were great encouragement to many. और आपकी जो गवाहियां हैं वो बहुत बड़ा उत्साह था वहाँ बहुत लोगों के लिए। The way I had planned was to come back via Dubai. और मेरा ये योजना थी कि मैं दुबई होते हुए वापस आऊं। I lived in Dubai, by the way, 10 years. और मैं 10 साल दुबई में रहा हूँ। My wife was born and raised in this city. और मेरी जो पत्नी है वो इस शहर में पैदा हुई है, पली बड़ी है। And that's Burj Khalifa for you. और ये बुर्ज खलीफा है। It's a beautiful city. और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। No mountains and no beach. वहाँ कोई पहाड़ और कोई समुद्र There नहीं is है। beach, but not nature. और वहाँ पे है समुद्र पर इतना ज़्यादा नेचर को नहीं देखने मिलेगा। We are in Dune very blessed. हम जिस देहरादून में हम बहुत आशीषित हैं। After some time in Dubai, you miss the mountains, you miss the greenery. और कुछ समय बाद आप दुबई में पहाड़ों को और जो हरा भरा सब है So उसको there are so मिस many करते हैं। buildings there. और वहाँ पे बहुत सारी इमारतें हैं। I visited the church, a church that sent me and Tressa to India. और मैं उस कलीसिया में गया जिस कलीसिया ने मुझे और ट्रेसा को भारत में भेजा। They have about 500 members. और इनके पास 500 मेंबर्स हैं। And this is one of the main pastor of the church was traveling. और ये उनमें से एक उनके पासबान है जो मेन पासबान है, वो सफर कर रहे थे। This person is from previous picture, please. That person is called Peter Vaughan. He is from England. और इनका नाम है पीटर वॉन और ये इंग्लैंड से हैं। So he was so good to see me, and I met with him afterwards. इनको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सर्विस के बाद उनसे मिला। The main pastor's name is Fuzi. He's a young African guy, black African. और जो मेन पास्टर है उनका नाम फूजी है और वो एक अफ्रीकन व्यक्ति हैं। He's also my friend, and that's his wife. He's married to Chinese girl. और ये उनकी पत्नी है और वो एक चाइनीज लड़की से उनकी शादी हुई है। And that's their children. I think there is one boy's picture. और ये उनका बेटा है। So I met some of my friends in Dubai. That's Peter Vaughan. और मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला वहाँ दुबई में। It was good to reconnect with them. और मुझे अच्छा लगा फिर से उनसे जुड़कर। And some of them, and this is the family I lived with them. और ये वो परिवार है जिनके साथ में यहाँ रहा। That's Rohit, Diya's brother Rohit. और ये रोहित है, ये दिया दीदी के भाई हैं रोहित। Diya's brother is also Rohit. Diya's husband is also Rohit. दिया दीदी के पति और भाई दोनों का नाम रोहित But है। two different Rohit. पर ये अलग-अलग रोहित है। And Rohit and his wife Navi and those two boys. और ये उनके पत्नी है और ये उनके 2 बेटे हैं। They really took a very good care of me. और उन्होंने सच में मेरा बहुत ख्याल रखा। They really opened their house. और उन्होंने अपने घर को मेरे लिए खोला।
the people showered their love. और उन्होंने अपने प्रेम को मेरे ऊपर बरसाया They were so encouraged to hear what God is doing. और बहुत ही उत्साहित है सुन के जो परमेश्वर कर रहा है। Even in this place, I met with old friends, and for a year I have to fundraise myself to support myself for a year. और मैं कुछ दोस्तों से मिला और मुझे एक साल के लिए आर्थिक सहायता के लिए जरूरत थी। I'm grateful to some of my friends. They said they would support me for a year. और मैं धन्यवादी हूँ अपने दोस्तों का, उन्होंने बोला वह मेरी सहायता करेंगे। So God had done great things in this trip. और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चीजें करी मेरे साथ इस सफर में। You are introduced to the nations. और आपको दूसरे राष्ट्रों से आपका परिचय कराया गया I है। missed this picture. This is my friend Colin. Look at the hat. और ये मेरे दोस्त कॉलिन है। He is a captain in Emirates airplane. He flies planes. और एमिरेट्स एयरलाइंस में ये कैप्टन है। His wife's name is Wendy. They are from South Africa. और इनका पत्नी का नाम वेंडी है और ये सब साउथ अफ्रीका से हैं। And they were my Connect group leaders. और ये मेरे कनेक्ट ग्रुप के अगवा थे। They saw me growing in the Lord. और उन्होंने मुझे परमेश्वर में बढ़ते हुए देखा है। And so it was good to meet with them. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। So a lot of people send you love. This is one of my friend called Edgar. और ये मेरे एक दोस्त हैं एडगर और बहुत से लोगों ने आपको प्रेम भेजा है। He is a chef. He worked with me. I brought him to church, and God used me to spark faith in him. और ये भी एक शेफ है और ये मेरे साथ कार्य करते थे और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं उन्हें परमेश्वर में This is लेके another आऊं। person in the church, Anthony Pereira. और ये मेरे दोस्त हैं कलीसिया से जिनका नाम है एंथनी परेरा। He's from New Delhi, from Delhi. और ये दिल्ली से हैं। And his wife's father is a pastor there in Delhi. और इनके पत्नी की जो पिता है वो एक पासबान है दिल्ली So में। the church in Dubai that had originally sent us to India, they really were so proud of us that we are meeting here and doing something greater for और the ये वो Lord. कलीसिया जिन्होंने मुझे भारत भेजा था और वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे देख के हमारी कलीसिया को। So our vision is not just a vision, और जो हमारा दर्शन है वो सिर्फ एक दर्शन नहीं है not just a great thought, और सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, but it is a vision that God has given. पर ये एक दर्शन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। That from here we will be also discipling nations. और क्योंकि हम इस जगह से राष्ट्र को चेला बना सकें। It's not just the nations in terms of India, South Africa, Pakistan, और ये सिर्फ वो राष्ट्र नहीं है इंडिया, साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान, but also the word nations means people group. और जो राष्ट्र शब्द यूज किया है वो अलग जातियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। The Garhwali people group, the Kumaoni people group. जो गढ़वाली लोगों का समूह है, कुमाऊनी लोगों का समूह है। So I give God all the glory. तो मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ। And I just want to thank you as a church who prayed for me. और मैं कलीसिया के नाते आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। Can you give yourself a clap? और क्यों ना आप अपने लिए तालियां बजाएं। I also want to thank some of the people who contributed towards this. और मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने योगदान दिया मेरे इस ट्रिप में। The amount did not matter, but the heart mattered. और कितना उन्होंने दिया वो मायने नहीं रखता, पर उनका हृदय मायने रखता है। And God is so faithful to His word. और परमेश्वर बहुत ही विश्वास योग्य है अपने वचन को लेकर। I'm so grateful to the team who carried the 2 Sundays here. और मैं धन्यवाद करता हूँ उस टीम का जो 2 संडेज उन्होंने यहाँ पर देखा। I had joined you through online. और मैं ऑनलाइन आपके साथ जुड़ा हुआ था। The Mother's Day surprise was amazing. Well done, church. और मदर्स डे सरप्राइज बहुत ही अद्भुत था, आपने बहुत अच्छा करा कलीसिया। I missed my mom. और मैं अपनी माता को याद कर रहा था। I'm so grateful to all the teams who served ADC. और मैं उन सारी टीम्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ADC में सेवा The करते हैं। preaching team that preached here to last 2 Sundays. और वो प्रचार करने वाली टीम जिन्होंने पिछले 2 सप्ताह प्रचार करा यहाँ पे। So I'm so grateful to God. और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ परमेश्वर का। But I'm also grateful to my parents. Because of them I could go, and to my wife who take care of the kids. और मैं अपने माता पिता और अपनी पत्नी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा क्योंकि मैं जा सकूँ। So are you ready this morning for the word of God? और क्या आप तैयार हैं सुबह परमेश्वर के वचन के लिए? Yes. हाँ। ADC, don't we love God's word? और ADC, क्या हम परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते? Yes. हाँ। Can we just close our eyes and pray? Lord, would you speak to us? Father, we want to look to your word.
प्रभु हम आपके वचनों को देखते हैं प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन प्रभु जो एक नई सृष्टि रचता है प्रभु, वह सामर्थ है आपके वचन में प्रभु। प्रभु हम आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु, हम आपके वचनों से आपको देखना चाहते हैं प्रभु यीशु। हमारे जीवनों में आपका वचन बहुत मायने रखता है प्रभु यीशु। आपके वचन के अनुसार हमें आकार दें प्रभु, हम आपके वचनों पर चलना चाहते हैं प्रभु, हम आपके और ताकते हैं। धन्यवाद, हमें प्रभु संतुष्ट कर हमारी भूख को आपके वचनों से जो कि जीवन का रोटी है हमें तृप्त कर प्रभु। इस सुबह धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, हमारा जीवन आपके महिमा के योग्य है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, सारा गौरव आदर्श आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। What a wonderful time of worship we had. और बहुत ही अद्भुत समय रहा हमारे आराधना का। Were you blessed? क्या आप लोग आशीषित हुए? There is an evident presence of God in our midst. और हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। And so when I left, there was no war, but when I went, all of a sudden there was war, India, और Pakistan. जब मैं यहाँ से गया था तब तो कुछ युद्ध नहीं हो रहा था, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला यहाँ पे युद्ध हो रहा है। And I'm sorry, Abhishek's title was about, God in uncertain times, something like that, about uncertain times. और जो अभिषेक के प्रचार का शीर्षक था वो था अनिश्चित समय में परमेश्वर। And I was wondering why uncertain times, everything is so certain, everything is so good. और मैंने सोचा अनिश्चित समय क्यों, क्योंकि हर चीज तो निश्चित है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। But you see, we can be prophetic without knowing being prophetic. और कई बार हम भविष्यवाणी करते हैं बिना जाने कि हम वो कर रहे हैं। And so he was speaking about the uncertain times that about to happen for our nation. और वो उस अनिश्चित समय के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे देश के साथ होने वाला है। And so God is always ministering to us through His Word, through His presence. और परमेश्वर हमेशा अपनी उपस्थिति और अपने वचन के द्वारा हमसे बात So करता I go है। back to the series that I had began called Back to Basics. और मैं वही श्रृंखला में वापस जा रहा हूँ जो मैंने शुरू किया था, बुनियादी बातों पर लौटना। As a basic of Christian faith, Christianity. और हमारी जो मसीही विश्वास है उसके बुनियाद की तरफ We're looking at foundational aspects of us as Christians. और हम उन बुनियादी पहलू पे देखेंगे एक मसीही होने के। We already looked at that our life begins with Christ when we confess Jesus as Lord and Savior. और हम देखते हैं हमारा जीवन एक मसीही का तब शुरू होता है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु मानते We हैं repent of our sins. और जब हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों का। And we looked at how God justifies us. हम देखते हैं कैसे परमेश्वर हमें सिद्ध करता है। He brings you from the darkness into His light. और वो हमें अंधकार से निकाल कर अपनी ज्योति में लेकर आता है। We looked at the basics that there is a war over us. और हम देखते हैं उन बुनियादी बातों को कि एक युद्ध है जो हमारे जीवन के ऊपर है। Because we are brought out of darkness, the kingdom of darkness will not leave us. Let us go. They keep on coming at us. और क्योंकि हम अंधकार का राज्य छोड़ के आए हैं तो वो हमें वहां रहने नहीं देते उस स्थिति But में। we also place our focus in God who is fighting for us. पर हम उस परमेश्वर पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए उस युद्ध को लड़ता He is है। victorious. और वो जयवंत परमेश्वर है। And no powers can take us away. और कोई भी ताकत हमें उससे दूर नहीं कर सकती। So we understand the basic of Christianity is there is battle. There is spiritual battle over और it. हम इस बुनियादी बात को समझते हैं कि एक आत्मिक युद्ध है जो चल रहा है। But then we also looked at that Jesus is interested in sanctifying us. पर हम ये भी चीज को देखते हैं कि परमेश्वर दिलचस्पी रखता है हमें शुद्ध करने में। So your coming to Jesus is not about just going to heaven. तो आपका मसीह में आना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप स्वर्ग जाएं। If it was so, the day you receive Jesus, you die and we go to heaven. And it's a happy ending story. और अगर ऐसा होता तो आप मसीह को जिस दिन ग्रहण करते आप उसी दिन मरते और परमेश्वर स्वर्ग पे पहुंच जाते और हमारी एक अच्छा सा अंत हो जाता। But Jesus is interested in you being sanctified or you being prepared or you being living to your best full potential. Live the life to the fullest.
और पर परमेश्वर दिलचस्पी रखता है आपको शुद्ध करने में, और आप अपने सबसे उत्तम काबिलियत पे जी सके ये जीवन पूरी तरीके से, उसके लिए। So sanctification is a process. और जो शुद्धिकरण है वो एक प्रतिक्रिया है। Is a process where Jesus cleanses. और ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जहाँ यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है, साफ Jesus करता है, makes us more like Him. और यीशु मसीह हमें और अपने जैसा बनाता है, He's shaping us. और वो हमें आकार दे रहा है, He's restoring us. और वो हमें फिर से पुनर्स्थापित कर And रहा है। that is nowhere in our own strength. और ये हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी खुद के It's सामर्थ्य में, just we partnering with Him. और सिर्फ हम उसकी साझेदारी में ऐसा कर सकते हैं। You give yourself to Him, to God, to Jesus, to sanctify us. और हम अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, यीशु को देते हैं कि वो हमें शुद्ध कर So सके। today we look at a very important aspect of Christianity, which is faith. और एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे हमारी मसीहियत के, वो है विश्वास। Faith is from where everything begins. और ये विश्वास है जहाँ से हर एक चीज की शुरुआत होती है। Faith is a very important, essential aspect of Christian life. और एक बहुत ही ज्यादा जरूरी पहलू है ये एक मसीही जीवन का। As a believer, our relationship with God begins with faith in Jesus. और एक मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारी सफर जो शुरू होता है वो विश्वास से शुरू होता है जो हमारा मसीह में है। I always say a believer is called believer because he believes. और मैं हमेशा कहता हूँ एक विश्वासी इसलिए कहलाता है क्योंकि वह विश्वास करता है। If a believer is not believing, then there is nothing much left. और अगर एक विश्वासी विश्वास ही नहीं रख रहा है तो कुछ बचा ही नहीं है। Life without God, life without faith in God is like ice cream without ice. और परमेश्वर में विश्वास के बिना जीवन एक आइसक्रीम की तरह है जिसमें कोई बर्फ ही ना हो। How many of you would like that ice cream which doesn't have ice? और आप में से कितने वो आइसक्रीम पसंद करेंगे जिसमें बर्फ ही ना हो? Will it be tasty? क्या वो अच्छी लगेगी? You know, faith in God will take you places or take you to positions that you never even thought or imagined. और परमेश्वर पर विश्वास रखना आपको ऐसी जगहों पर ले जाएगा जो उसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। I know Teresa even said that 2 Sundays ago that my husband, who is known to be as a faith man, believed that he will be in South Africa and he's gone. और 2 सप्ताह पहले मेरी पत्नी ने ये बोला था कि मेरे जो पति हैं जिनको मैं एक विश्वासी पुरुष मानती हूँ, उन्हें विश्वास है कि वो साउथ अफ्रीका में For होंगे। me, faith is a very essential aspect of my life with Jesus. और जो विश्वास है मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। Bible says faith pleases God. और वचन ऐसा कहता है कि जो विश्वास है वो परमेश्वर को आनंदित करता है। If you have faith, God is pleased in you. और अगर आपके पास विश्वास है तो परमेश्वर आप में आनंद रखता But you है। know, faith is more than believing. तो पर विश्वास जो है विश्वास करने से भी बढ़कर है। Yeah, because in Hindi, this one word Vishwas. Yes. Yeah, एक ही शब्द है विश्वास का. But in you know, faith is more than believing. It is more than trusting. और विश्वास करना मानने से ज्यादा है और भरोसा रखने से बढ़कर है। Because one can believe in Jesus. People all can say, I believe Jesus was God. और हम में से कितने हैं जो मसीह को मान सकते हैं? कैसे हम मानते हैं कि वो परमेश्वर थे, But yet they may not have faith in Him. पर उनका जो भरोसा है वो उस पर ना हो Are you जाए। following? क्या आप समझ रहे हैं? Because even Bible says that just believing is not enough. क्योंकि वचन भी ऐसा कहता है कि सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। You see, book of James, Pastor James is speaking to his church and he's saying, even demons believe in God. और जो आप याकूब की पत्री में देखते हैं वो अपनी कलीसिया से याकूब बोल रहे हैं कि इवन दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास And they are रखती है afraid of him. और वो उससे डरते भी हैं। But there is something missing. पर एक चीज है जिसकी कमी है।
They don't have faith. उनके पास वो भरोसा नहीं है। Are you able to see that? क्या आप वो समझ पा रहे हैं? We all can say, I believe in Jesus. हम सब कह सकते हैं हम मसीह को मानते Some हैं। of you have thought that you are born in Christian family means I am a believer. और आप में से कितने मानते होंगे कि क्योंकि मैं मसीह परिवार में जन्मा हूँ तो मैं एक विश्वासी हूँ। You see, faith is more than believing. पर जो विश्वास है वो मानने से बढ़कर है। And if this morning, if you only understood, the levels of faith, the types of faith, you will position yourself and you will trust God and you will have faith. और इस सुबह अगर आप समझ लें विश्वास का स्तर और अलग अलग तरीके के विश्वास, तो आप उसमें से बहुत विश्वास के साथ आप कार्य कर सकते हैं। Jesus said this in Luke 18:8. और यीशु मसीह ने ऐसा कहा लूका 18:8 में। I tell you, he was speaking about, a widow who was persistently going to plead with the judge. और यहाँ पे वो एक विधवा की बात कर रहे हैं जो बार बार जो न्यायाधीश था उसके पास विनती लेकर जाती थी। He says, I tell you, he will get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? और मैं तुमसे ये कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? So faith starts strong but does not finish strong at तो times. आप देखेंगे कि हमारा विश्वास जो है बहुत ही सामर्थ्य के साथ शुरू तो होता है पर कई बार उसका अंत सामर्थ्य नहीं होता। Why? क्यों? Because there is a battle. क्योंकि एक युद्ध चल रहा है। Anything the enemy is after is your faith in Jesus. और कोई चीज जिसके पीछे दुष्ट है वो है आपका विश्वास यीशु मसीह पर। Faith gets depleted. और धीरे धीरे कभी विश्वास कम होने लगता है। Faith can get all of a sudden strong. और कभी कभी हमारा विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है। There are different levels of faith. और अलग अलग स्तर है विश्वास के। I end up in places where I never even thought or imagined. और मैं कई बार ऐसी जगहों पे पहुंचा जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। From the time I started my journey with Jesus, I knew that God is who He is, and He says who He is, and He does what He says. और मैं जिस समय से अपनी जर्नी मसीह के साथ शुरू करी, मैं जानता था कि परमेश्वर वो है जो वो कहता है और वो करता है जो वो कहता है करने को। Faith can start strong but can end up very poor. और कई बार हमारा जो विश्वास है अच्छे स्तर पर शुरू तो होता है पर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। And the reverse is also true. और ये जो रिवर्सल है ये भी सच है। Faith can start little. और कभी कभी विश्वास थोड़े से शुरू होता है but end up being a great faith. पर कई बार बहुत ही महान विश्वास बन जाता This है। morning we will understand types of faith. इस सुबह हम समझेंगे अलग अलग तरीके के विश्वास। And then we will understand the levels of faith. और हम समझेंगे अलग अलग स्तर का विश्वास। And how to grow in faith in our walk with Jesus. और कैसे हम विश्वास में बढ़ सकते हैं अपने इस सफर में मसीह के साथ। Because I'm sure many of you are finding yourself in struggles. क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई हैं जो अपने आप को संघर्ष में पाते हैं। In challenges. और बहुत सारा संघर्ष है। In difficulties. बहुत ही मुश्किलों में। Perhaps as a family you are struggling. शायद एक परिवार के तौर पर आप संघर्ष कर रहे हो। Or as an individual you are struggling. या व्यक्तिगत तौर से आप संघर्ष कर रहे हो। Financial struggles. शायद आर्थिक संघर्ष हो। If you have faith in God. अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है। If you have strong faith in God, अगर आपका बहुत ही मजबूत विश्वास है परमेश्वर पर, you will see God do things for you that you cannot have seen. और आप परमेश्वर को वो कार्य करता देखेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। Some of them I call them 21st century miracles. और मैं आज के जमाने में उन्हें कहता हूँ 21वीं सदी की आश्चर्य कारण। Do you know to live in India is also a miracle? क्या आपको पता है कि भारत में रहना भी एक चमत्कार है? To be alive in India is a miracle. Do you know that? और भारत देश में जीवित रहना भी एक चमत्कार है। You can start on scooter and you never know what will happen. और आप स्कूटर में बैठ के जा तो सकते हैं, आपको पता नहीं आगे आपके साथ क्या होगा। There are so many 21st century miracles, the favor that God does for you. God says, my people don't even know that I am the one who is doing for them. और ऐसे 21वीं सदी के हम चमत्कार देखते हैं, ऐसा अनुग्रह प्रभु का, और परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग जानते भी नहीं कि ये मैंने उनके लिए किया Some है। call them even lucky. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। By the way, if you are
believer, we do not use the word lucky. और अगर आप एक विश्वासी हैं तो हम सौभाग्यशाली शब्द इस्तेमाल Because नहीं there is करते। no such thing luck. और मैं लक जैसी किसी चीज पर विश्वास But नहीं there करता, is such thing of being blessed. पर एक ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं आशीषित In होना। fact, let me tell you, your being blessed is in direct proportion to your faith in God. और आपका आशीषित होना इस चीज पर निर्भर करता है कि आपका विश्वास कितना है परमेश्वर पर। The greater the faith, जितना ज्यादा आपका विश्वास होगा greater the blessings. उतना बड़ा आप आशीषित होंगे। Now, even blessing term is people think that it's only to do with finance. और कई लोग आशीष शब्द को सिर्फ आर्थिक आशीष से ही जोड़ते हैं। Can you breathe? क्या आप सांस ले सकते हो? Can you deep breathe? क्या आप एक गहरी सांस ले सकते हो? That's a blessing. ये एक आशीष है, You're just breathing and alive. क्योंकि आप सांस ले रहे हैं और आप जीवित हैं। You drink good water, क्या आप अच्छा साफ पानी पीते हैं? that's blessing. वो एक आशीष है। Not very far in our own nation, I once came across this news that there is a small village in Madhya Pradesh. They are walking hours to go and fill clean water. और ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे ही देश में एक गांव है मध्य प्रदेश में, और बताते हैं वो घंटों चलते हैं साफ पानी को लेने के And लिए। a girl, she was saying, I can't focus on study and writing my exams because hours I go to fill water. और वो एक बच्ची बोलती है कि मैं अपने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे घंटों जाकर पानी भरने And I said, पड़ता है। we are so blessed. और मैं सोचता हूँ हम बहुत ही आशीषित हैं, There are so many blessings that we do not understand. और ऐसी बहुत सारी आशीषें हैं जो हम शायद समझते भी नहीं It's in हैं, direct proportion with your faith in God. और वो निर्भर करती है आपके विश्वास पर जो मसीह के ऊपर है। Faith pleases God. और जो हमारा विश्वास है वो परमेश्वर को आनंदित करता Let me है, tell you, faith in God pleases God. और परमेश्वर पर विश्वास उसको आनंदित करता Because है। you can have faith in your money. और शायद आपका विश्वास आपके पैसों पर हो You सकता can है, have faith in your great job. और या आपकी बहुत ही अच्छी नौकरी पर आपका विश्वास हो सकता You है, can have faith in bank balance. या शायद आपके बैंक बैलेंस पे आपका विश्वास हो सकता But है। one day things happens and you realize that faith was shaky. और एक दिन कुछ ऐसा होता है और आपको पता चलता है जो आपका विश्वास है वो हिल चुका है। I grew up in a very poor home. और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पला बड़ा हुआ। It's not that when Jesus came and all of a sudden blessing started और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आया और अचानक से आशीषें शुरू हो or गई, someone gave a lot of money to me. या किसी ने मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया। No. नहीं, Jesus actually started speaking senses in my life. बल्कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि देना शुरू किया, And he started helping me. He started encouraging me to work hard. और परमेश्वर ने मुझे उत्साहित करना शुरू किया कि मैं और मेहनत करूं, He gave me favor that I never had before. और उसने मुझे अनुग्रह दिया जो पहले कभी मुझे नहीं मिला था। I started believing in him and all his promises. और मैं उस पर विश्वास लाना शुरू किया और उसके सारे वादों पर विश्वास करना My शुरू किया। journey started with hearing God. और मेरा जो सफर हुआ वो परमेश्वर को सुनने से And you शुरू know, हुआ, faith begins with hearing God. और जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन को सुनने से शुरू होता है। And hearing doesn't happen once. That's why it says hearing and hearing. और एक बार सुनना नहीं होता है, वो कहते हैं सुनना और सुनना। Did you hear from God today? क्या आपने आज परमेश्वर से सुना? What is God saying to you? क्या परमेश्वर आपसे कह रहा है? And so my life went through places. और मैं अपने जीवन में अलग अलग जगहों पर गया, I saw very little money और मैंने बहुत कम पैसे की स्थिति देखी है, and I saw a lifestyle with lot of money. और मैंने वो जीवन शैली भी जी है जहाँ बहुत सारा पैसा I था, saw very lack और मैंने बहुत ज्यादा घटी भी देखी है, and then I saw also balance. और फिर मैंने देखा है कि जीवन संतुलित भी हुआ। But I learned a lot of things. पर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, Is one thing for sure. और एक चीज तो बहुत ही श्योर है Faith in God will never put you to shame. कि परमेश्वर पर विश्वास लाना आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। I only didn't see the life financially perspective. और मैंने सिर्फ अपना जीवन आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा, I also saw my life changed because of Jesus. पर मैंने अपने जीवन को परिवर्तित होते देखा है मसीह के कारण।
a boy who never thought will do anything in life. और एक ऐसा लड़का जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो कुछ अपने जीवन में कर पाएगा, The most fearful person. और मैं बहुत ही डरपोक व्यक्ति था। You see, opposite of faith is fear. और आप देखेंगे विश्वास का जो विपरीत है वो डर है। I wouldn't be standing in front of people and speaking. और मैं शायद लोगों के सामने खड़े होकर उनसे बात भी ना कर रहा होता। I didn't speak English. I grew up in Hindi medium school. और ना ही मैं अंग्रेजी बोलता था, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था। You see, faith can take you to places you never ever have पर imagined. विश्वास आपको ऐसी जगहों पे ले जाता है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होती। God has a calling over you. और परमेश्वर की एक बुलाहट है आपके God जीवन has के a ऊपर, purpose over you. और परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन के And ऊपर। faith is like a fuel in the vehicle, can take you to places. और ये जो विश्वास है एक फ्यूल की तरह है गाड़ी में, जो आपको अलग अलग जगहों पे ले जा सकता है। So, each of us as believers will go through challenges and circumstances. और कई बार एक विश्वासी होने के नाते हम अपने जीवनों में कई संघर्षों से गुजरेंगे। I heard this just last week. A great man of God in South India. His name was V.M. Samuel. I do not know much about him. और मैं एक बहुत ही महान पुरुष जो विश्वास के हैं साउथ इंडिया में, वीएम सैमुअल के बारे में सुना। He was used by God mightily. I think he was from Mangalore. और वो बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुए। He said this, you are not only called to believing, but you are called to suffer. और उन्होंने कहा आपको सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको संघर्ष करने के लिए भी बुलाया गया है। Isn't that powerful? क्या ये एक सामर्थी बात That नहीं? we as a Christians are not just called to believe Jesus, और हम एक विश्वासी होने के नाते सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास but करने के to लिए नहीं बुलाए गए, suffer for Him. पर उसके लिए हम पीड़ा उठाने के लिए भी बुलाए गए हैं। How many of you want that? आप में से कितना ऐसा चाहते How हैं? many of you have claimed the blessing that Matthew 5 ends with saying, Blessed are you if you are being persecuted? और आप कितनों ने अपने ऊपर उस आशीष की घोषणा की है? मत्ती 5 में जो कहता है कि धन्य है वो जो सताए जाते हैं। See, we have a kind of perspective of view of Christianity और एक हमारी एक सोच है मसीहत को लेकर, is that when we follow Jesus, everything will go well. और हम सोचते हैं अगर हम मसीह के पीछे चलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। Or Jesus is going around and giving money to everyone. और यीशु मसीह जा रहा है और सबको बस पैसे बांट रहा है। No, our faith will be refined by fire. पर हमारा जो विश्वास है वो शुद्ध किया जाएगा, ताया जाएगा अग्नि के Some द्वारा। of you who don't like to be suffer, you are not getting refined. और आप में से जितने हैं जो पीड़ा उठाना नहीं चाहते हैं, आप शुद्ध भी नहीं किए जा रहे हैं। In 1 Peter chapter 1, Peter says this, और पहला पत्रस उसका अध्याय 1 में पत्रस ऐसा कहता है, that your faith will be tested. वो कहता है तुम्हारा जो विश्वास है वो परखा जाएगा। Who rejoices in suffering, right? और कौन पीड़ा में आनंद उठाता है? But look at this in verse 6. और आप 6वें वचन में देखेंगे In this you greatly rejoice, कि इस कारण तुम मगन होते हो, though now for a little while you may have had to suffer all kinds of trials. यदि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। Verse 7, this have come so that your faith is tested. और यह इसलिए है कि तुम्हारा जो विश्वास है परखा जाए। Something of greater worth than gold. और वो आग से ताया जाए कि नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। Please underline this verse. और आप इस वचन को अंडरलाइन करें। Which perishes even through refined by fire. और वह आग से ताया हुए नाशवान सोने से भी अधिक You बहुमूल्य see, है। gold can perish. आप देखते हैं कि सोना है उसे भी नाश किया जा सकता है, Will be liquid. वो बिल्कुल पानी बना सकते हैं उसको। But your faith refined by fire पर जो आपका विश्वास है जो अग्नि से ताया जाता may है, be proved genuine. और वो यीशु मसीह के सामने प्रकट होने पर Is your faith in Jesus genuine? क्या आपका विश्वास परमेश्वर में खरा है? Will be tested by struggles and circumstances that you are going through. और वो आपकी उन परीक्षाओं और परिस्थितियों से जांचा जाएगा जिसके द्वारा जिससे आप गुजर रहे हैं। Refined by fire और वो अग्नि से ताया जाएगा, will be tested whether genuine or not, और देखा जाएगा क्या वो खरा है या नहीं है, which will result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे।
Each of us, we may say, I have great faith. और आप में से कोई भी कह सकता है कि मेरा विश्वास बहुत महान है I have faith in Jesus. और मैं विश्वास करता हूँ यीशु I मसीह पर, believe in Jesus. मैं उसके पे भरोसा भी रखता हूँ। But we might be far from the kind of faith that God is looking at. और शायद हम उस विश्वास से कई ज्यादा दूर हो जो परमेश्वर ढूंढ रहा है। You see, lack of faith is not sin. तो आप देखिए, विश्वास की कमी होना कोई पाप नहीं है। We all begin with little faith. हम सब थोड़े विश्वास से ही शुरुआत करते If हैं। you want to make notes, I'm giving you, there are types of faith that Bible speaks about. और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरीकों का विश्वास जिसके बारे में बाइबल बात करती है। First one is little faith, पहला है थोड़ा विश्वास, which perhaps all of us will fall into that category. और शायद हम सब उस समूह में आते हैं जिनके पास थोड़ा विश्वास है। And before we end this sermons, I want to give you 3 stages of faith that you and I will all go through. और अगर जब हम ये खत्म करते हैं उससे पहले आपको 3 स्तर दूंगा विश्वास के, जिसमें के द्वारा हम सब गुजरेंगे। But right now, understand different types of faith. पर इस समय हम समझेंगे अलग अलग तरीके का विश्वास। So, little faith, तो पहला है थोड़ा विश्वास, weak faith. जो कमजोर विश्वास है। But then there is something called saving faith. फिर दूसरा है जो है बचाए जाने वाला विश्वास। So we all begin with little faith. Is Jesus Christ the Lord? और हम एक छोटे से विश्वास से शुरू करते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते Is हुए Jesus Christ God? कि कहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर है, Or is it just Christians are claiming fake claims that he is risen? या बस मसीहियों का ये झूठा घोषणा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Little faith has a mix of yes and maybe and no. और जो थोड़ा विश्वास है उसमें हाँ हो सकता है, हो सकता होगा, या नहीं भी मिला But होता है। Bible says that those who will believe in him, he will not judge them, he will not condemn them. In fact, he will give them eternal life. और वो उसका वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास लाते हैं उन पर न्याय नहीं आएगा, बल्कि उनको अनंत का जीवन दिया So जाएगा। it all depends on believing in Jesus. और ये सब निर्भर करता है आपके विश्वास पे यीशु So मसीह पर। those who believe in Jesus, they move from little faith to saving faith. तो जो मसीह पर विश्वास रखे रहते हैं वो थोड़े विश्वास से बचाए जाने वाले विश्वास पर बढ़ते हैं। And people get stuck here. और फिर लोग यहीं पे फंसे रह जाते हैं। They are saved. अब वो बचाए गए हैं, They're going to heaven. अब वो स्वर्ग जा रहे हैं, But their faith is not translated in their lifestyle. पर जो उनका विश्वास है वो उनकी जीवन शैली पे नहीं दिखाई देता। And that is the second aspect of, a third aspect of faith called living faith. और फिर हम एक तीसरे पहलू के विश्वास पे आते हैं जो है जीवित विश्वास। Is your faith living? क्या आपका विश्वास जीवित है? Faith in definition, Hebrews 11 verse 1, you can read it yourself, gives a definition. Faith is. Now faith is. और इब्रानियों 11:1 में परिभाषा दी गई है विश्वास की कि विश्वास क्या है। Now faith is कि अब विश्वास confidence. आशा है। Confidence of what? किस बात की आशा है? Confidence in what? और किस चीज पर आशा है? Of things we hope for. उन चीजों की निश्चय है, उनकी आशा की हुई वस्तुओं You might की। want to circle confidence. और आप भरोसा या निश्चय पे सर्कल करना In चाहेंगे what we hope for. उन वस्तुओं की जिन पर हम आशा रखते The हैं। second word you might want to circle is assurance और फिर वो है प्रमाण about what we do not see. उन अनदेखी वस्तुओं का। So confidence in God, तो परमेश्वर पर भरोसा confidence in what God says, और उस पर भरोसा जो परमेश्वर कहता है, and our assurance of God, what He says will do it. और इस बात का निश्चय कि परमेश्वर वो करेगा जो वो कहता है करने को। Confidence in God. परमेश्वर पर भरोसा। You can have confidence in your scooter, आपका भरोसा आपके स्कूटर पर हो सकता है, but it may not last. पर वो हमेशा के लिए नहीं You can रहेगा। have confidence in your bank balance, और आपका अपने बैंक बैलेंस पे भरोसा हो सकता but है, it will not be proven. पर वो प्रमाणित नहीं होगा। In the same way, confidence in God.
और इसी तरीके से जो हमारा भरोसा है परमेश्वर के And ऊपर, assurance of what God says He will do it is actually faith. और निश्चय इस बात का कि जो परमेश्वर कहता है वो करेगा, वो विश्वास है। So the types of faith, going back to the types of faith. और जो अलग अलग तरीके के विश्वास है, हम वापस उसी पर आएंगे। So people get stuck on just being saved by faith. और लोग सिर्फ यहीं पर अटके रह जाते हैं कि बचाए जाए गए अपने विश्वास के द्वारा, But their faith is not translated in their lifestyle. पर जो उनका विश्वास है उनकी जीवन शैली पर दिखाई नहीं देता, Is where their confidence and assurance in God lacks. और ये वो भरोसा है, उनका निश्चय है परमेश्वर पे जिसकी हमें घटी है, It is wavering at times. और वो हमेशा हिलता रहता है। You may say one fine day, yeah, I believe in God. और एक अच्छे दिन आप कहेंगे कि हाँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, But the next thing, can God provide you फिर आप food for tomorrow? और अगले दिन आप सोचते हैं क्या परमेश्वर कल के लिए मुझे भोजन देगा, Can God provide the things that I need in next days? और क्या परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों की जरूरतें पूरी करेगा। You waver. आप डामाडोल जाते हैं, You worry. आप चिंता करते हैं, You are anxious. और आप घबराहट से भर जाते हैं, You fear. और आप डरते हैं। The exact opposite of faith is anxiety, worry, and fear. और जो विपरीत है विश्वास का वो है घबराना, डर। It is from this place you lack trust in God. और ये वो जगह है जहाँ से आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते, And you begin to lean on your own understanding. और फिर आप अपनी ही बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं। You know how we begin our life? आपको पता है हम कैसे अपना जीवन शुरू करते हैं? We want to do things and then say, I have faith in God, I am doing in this. आप खुद कुछ करते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे विश्वास है परमेश्वर इसमें है। I want to begin this relationship and then I want to say, God, would you come in this relationship? कि हम एक रिश्ता शुरू करना चाहते हैं और फिर हम पूछते हैं क्या आप इस रिश्ते में आएंगे I'm प्रभु, having faith for this relationship. और मुझे विश्वास है इस रिश्ते के लिए। That's not how faith starts. और ऐसे नहीं है जो विश्वास शुरू Faith होता है। starts from hearing from God. विश्वास शुरू होता है परमेश्वर को सुनने से। Is God in this relationship? क्या परमेश्वर है इस रिश्ते में? Does God wants me to do this? क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा करूं? You know, I remember sitting 2 months in month of March, and just when that invitation comes, would you like to come to South Africa? और मैं 2 महीने बैठा रहा मार्च तक, और मेरे पास जब निमंत्रण आया कि क्या मैं साउथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ, I had a very thought from God that, what if I end up going for this trip? और मेरे अंदर ये ख्याल आया कि अगर मैं अंत में वहां पहुंच गया तो, I felt God is in this trip. और मैंने सोचा कि परमेश्वर I इस felt सफर में God है is going to do something in this trip. और परमेश्वर कुछ करेगा इस सफर में। I had no money. मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, I had nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं था, To think about something which was even not possible. और मैं कुछ ऐसा करने का सोच रहा था जो संभव भी नहीं है। You see, faith in God sees beyond the natural. और जो परमेश्वर पर विश्वास है वो स्वाभाविक से ऊपर देखता है। I said to my wife, because I needed approval from her, और मैंने अपनी बीवी को बताया क्योंकि मुझे उनकी अनुमति की जरूरत थी। what if I end up going on this trip? मैंने उनसे पूछा अगर मैं इस ट्रिप पे जाता हूँ And तो? she said, yes, if you want to go. उन्होंने कहा हाँ अगर आप जाना चाहते I हो। didn't say I want to go and then I was bringing God and have in faith in that. और मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं जाऊंगा और उसके बाद मैं विश्वास करूंगा प्रभु I पे। heard from God that this is an invitation from God. और मैंने ये परमेश्वर से सुना कि ये निमंत्रण है This परमेश्वर की is ओर an से, opportunity that God wants me to go on. और ये एक ऐसा अवसर है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। And I started believing in Him. और मैं उस पर विश्वास करने लगा, I started trusting in Him. और मैं उस पर भरोसा करने लगा, And I had faith in Him. और मुझे उस पर विश्वास था। You know, fast forwarding on the day which I booked the ticket, और मैं उस दिन पर आता हूँ जहाँ पर मैंने अपने टिकट्स बुक करे। 1 day before, I'm thinking I want to take something for my friends, like a hat from Garhwal. और मैंने 2 दिन पहले सोचा मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ ले जाना चाहता हूँ गढ़वाल से। I have no clue will I be even going. और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जा भी रहा हूँ या I नहीं। was sitting in the office. मैं अपने ऑफिस में बैठा था, I heard God say to me,
What are you doing? Get up and pack your bag. और मैंने सुना परमेश्वर ने कहा तुम क्या कर रहे हो, उठो और अपने कपड़े बांधना शुरू करो Go and bring those things that you want to take. और वो उन चीजों को खरीद कर लाओ जो तुम देना चाहते हो। So much so, I had return ticket because I needed a visa for Dubai. I had booked that ticket, but going ticket I have not booked. और मैंने अपने वापस आने का टिकट भी बुक कर लिया था, जबकि मैंने वीजा के लिए अप्लाई ही किया था, मैंने जाने का टिकट भी बुक नहीं किया था। I mean, who does that? ऐसा करता कौन है? Faith was stretched like anything. और जो मेरा विश्वास है वो परमेश्वर ने इस स्तर तक खींचा। I even said to some of them, like I remember Rohit and Abhishek. और मैंने कुछ लोगों को बोला भी, जैसे कि रोहित और अभिषेक Said, को, why God always wants me to write this exam of faith? और परमेश्वर क्यों हमेशा मुझे ये विश्वास की परीक्षा लिखवाता है? Why can't He just graduate me? कि सीधे सीधे मुझे ग्रेजुएट क्यों नहीं किया See, जाता? from now on, your faith is proven in me, कि आज से आपका विश्वास प्रमाणित है मेरी तरफ से and all will go well. You don't have to have faith. और सब कुछ अच्छा जाएगा, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी। Then I realized why. तो मैंने जाना क्यों? Faith pleases God. क्योंकि परमेश्वर को वो विश्वास आनंदित करता है। You see, our life begins with hearing from God. और हमारा जो जीवन शुरू होता है वो परमेश्वर को सुनने से शुरू होता है, And God gives us faith in those things. और फिर परमेश्वर हमें विश्वास देता है उन चीजों में। We get into blunders when we did not hear from God. और हम बहुत ही मुश्किलों में पड़ते हैं जब हम परमेश्वर से नहीं सुनते। On the very day the thought came to me, और वो ही दिन जिस दिन मुझे वो ख्याल आया, I've spent all the money and I've booked the return ticket. What if I did not end up going? All these things will go in waste. और मैंने सारा खर्चा कर दिया, मैंने रिटर्न टिकट बुक कर दिया, और मैंने सोचा क्या होगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ। Faith is always tested और हमारा विश्वास हमेशा परखा जाता है, in every aspect. हर एक पहलू में। In all these types of faith, your faith will be tested. और इन सारी तरीकों के विश्वास में आपका विश्वास परखा जाएगा। There is a third thing called justifying faith. और एक अगली चीज है जो है सिद्ध करने वाला विश्वास। We know Abraham was known as father of faith. और आप जानते हैं अब्राहम को विश्वास का पिता माना गया। In fact, the whole book, Hebrews chapter 11, the whole chapter, it says they had faith and they did this. और आप पूरा इब्रानियों 11 देखेंगे, वो इस बात से भरा है कि उनको विश्वास था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। Faith alone without action, Bible says, is dead. और वचन ऐसा कहता है, विश्वास बिना कुछ कार्य करे मृत्यु है। That's why God said to me, pack your bags. और इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अपने सामान को बांध दो, Act upon your faith. अपने विश्वास के ऊपर कार्य करो। All of those heroes of faith, generals of faith, it says they had faith and they did this. और जितने भी हम विश्वास के हीरोज देखते हैं वचन में, वो ऐसा कहता है कि उन्हें विश्वास था तब उन्होंने ऐसा किया। Abraham believed till the point of lifting the knives on his son. और अब्राहम ने उस क्षण तक भी प्रभु पे विश्वास किया जब तक उसने वो चाकू उठाया अपने बेटे को What मारने was को। his belief about God? क्या उसका विश्वास था परमेश्वर को लेके? God will provide. कि परमेश्वर प्रदान करेगा। Can you believe that? क्या आप विश्वास कर सकते हैं God will provide. कि परमेश्वर प्रदान करेगा? And before even he, puts the knife, God provided. और इससे पहले वो चाकू मारे, परमेश्वर ने प्रदान किया। You see, there are, your believing, Bible says Abraham believed God and it was accredited to him as righteousness. और आप देखते हैं वचन में लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। So as believers, we go through this type of faith of justification. और हम कई बार विश्वासी होने के नाते इस सिद्ध करने वाले विश्वास से गुजरते हैं। Are you holy? क्या आप पवित्र हैं? Can holy people lift up their hands, please? क्या आप पवित्र लोग अपना हाथ उठा सकते हैं? You are wondering, you see. This was the question my friend asked, by the way. और ये सवाल है जो मेरे एक दोस्त ने किया था मुझसे। All the blameless people stand up to worship Jesus. और जितने भी निष्कलंक लोग हैं वो खड़े हो जाए परमेश्वर की आराधना करने के Are लिए। you blameless? क्या आप निष्कलंक हैं? Yes, you are. हाँ आप हैं। That's why. Are you holy? Can I see hands? क्या आप पवित्र हैं? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? That's your justification faith.
ये आपका सिद्ध करने वाला विश्वास The है। enemy comes to you saying, you are not perfect. और शत्रु आपको कहने आता है कि आप सिद्ध नहीं You हो, are not doing enough. आप काफी नहीं कर रहे हो, God doesn't love you. कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। He keeps us busy that we must justify ourselves. और वो हमें व्यस्त रखता है कि हम अपने आप को खुद ही सिद्ध करते रहें। You know, Christ's offering on the cross, और मसीह का जो बलिदान है उस क्रूस पर, you placing your faith in his work, और आप उसके कार्य पर अपना भरोसा रखते हैं, makes you holy. आपको वही चीज पवित्र बनाती है। All those who are holy, lift up your hands और जितने पवित्र लोग हैं अपने हाथ को उठाएं with confidence and boldness. और अपने भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ। Are you holy? क्या आप पवित्र हैं? Yes, you are. हाँ, आप हैं। And so we go from justifying faith to a faith, called miraculous faith or supernatural faith. और हम फिर सिद्ध करने वाले विश्वास से ऊपर उठते हैं एक अलौकिक विश्वास पर, Gift of faith, और उसे हम कहेंगे विश्वास का वरदान, which God gives you supernaturally. जो परमेश्वर आपको अलौकिक रूप से देता That है, you end up doing things that you don't have ability to do. और आप वो कर देते हैं जिसकी आपके अंदर काबिलियत नहीं होती करने की। That's called gift of faith. वो कहलाता है विश्वास का वरदान। That through you God does great things. और आपके द्वारा परमेश्वर महान चीजें करता है, You will not even know. और आप जान भी नहीं पाएंगे। You end up sharing the gospel to your friend in college और आप अपने दोस्त से सुसमाचार बांट देते हैं कॉलेज में, because you have gift of faith. क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास का वरदान You दिया है। end up praying for someone and cancer got healed. और आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे और शायद उनका कैंसर चंगा हो जाए, That's great faith. और वो एक महान विश्वास है। But then there is a last faith, the last level of faith पर एक फिर है आखिरी स्तर विश्वास or का, type of faith. वो इस तरीके का विश्वास है, It's called enduring faith. वो है अंत तक रहने वाला faith. जो विश्वास अंत तक रहे, Enduring faith, जो धीरज धरता रहे, which doesn't shakes off, जो हिलता नहीं है, which doesn't gets challenged by circumstances. और जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है। In all these types of faith, और इन सारे तरीके के विश्वास में we have 3 stages of faith. हम 3 स्तर का विश्वास भी देखते हैं, You will go through each of these stages. और आप हर एक स्तर से गुजरेंगे। Either you will start straight away at stage 3, या तो आप सीधे तीसरे स्तर से शुरू करेंगे, or you may start at stage 1. या आप पहले स्तर से शुरू करेंगे। Do you want to write that down? क्या आप ये लिखना चाहेंगे? Number 1, little faith. पहला है थोड़ा विश्वास। You may start with little faith. आप थोड़े विश्वास से शुरू करेंगे, You know what little faith says? और आपको पता है जो थोड़ा विश्वास है वो क्या कहता है? Little faith says, I know God can do, but I am not sure He can do this. और थोड़ा विश्वास कहता है मैं जानता हूँ परमेश्वर ये कर सकता है, पर मुझे नहीं पता कि वो सही में ये कर सकता है या नहीं। How many of you have started at this stage? आप में से कितनों ने इस विश्वास से शुरू किया था? Yes. हाँ, I know God can do, मैं जानता हूँ परमेश्वर कर सकता है, but I am not sure He will. पर मैं निश्चित नहीं हूँ कि वो करेगा, Or He will do this. या वो ये करेगा। It can be in saving faith. वो विश्वास बचाए जाने विश्वास I में भी know हो सकता है। God can save the whole mankind, मैं जानता हूँ परमेश्वर पूरी मनुष्य जाति को बचा सकता but है, I am not sure He saves a sinner like me. पर मुझे निश्चित नहीं कि मुझ जैसे पापी को बचा सकता Are है। you getting me? क्या आप समझ रहे हैं? Please understand the types of faith and the stages of faith. आप ये तरीके थे विश्वास के, अब ये स्तर हैं विश्वास के। Or I know God can heal, मैं जानता हूँ परमेश्वर चंगा कर सकता है, but I am not sure if He will heal diabetes. और मुझे विश्वास नहीं कि क्या वो डायबिटीज हील कर सकता है या Are नहीं। you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? So, little faith stage, we all start sometime. और हम थोड़े विश्वास से हम सब शुरुआत करते हैं, Note this down. और आप ये लिखें, It will help you. यह आपकी मदद करेगा। Little faith focuses on objects, circumstances, feelings that are influenced by internal fears. और जो थोड़ा विश्वास है वो केंद्रित है भावनाओं पे, वस्तुओं पे या परिस्थितियों पे जो आप देख रहे हैं। Lack of faith or little faith is not sinful. और थोड़ा विश्वास होना या विश्वास की कमी होना
पाप नहीं है। Little faith wavers. और थोड़ा विश्वास डोलता जरूर है। Today you will think, yes, God can do it. आज आप सोचेंगे हाँ प्रभु कर सकता है, Tomorrow you will think, no, God cannot do this. और कल आप सोचेंगे नहीं परमेश्वर ये नहीं कर सकता। This is the little faith. The reason of little faith is someone who has not grown in their understanding of God. और ये थोड़ा विश्वास उनमें देखा जाता है जिन्होंने अपने परमेश्वर की समझ में जो बड़े नहीं हैं। The stage little faith is a struggling faith. और जो थोड़े विश्वास की जगह है वो संघर्ष करता हुआ विश्वास है। You see, a little faith will turn into unbelief until you give up. और वो थोड़ा विश्वास एक दिन अंधविश्वास में बदल जाता है या विश्वास ना होने में बदल जाता है, बदल सकता है जब तक आप हार ना माने। Little faith starts well, और थोड़ा विश्वास अच्छे से शुरू होता है, but then you give up, या फिर अंत में आप हार मान लेते and हैं then you profess, God cannot save me. और फिर आप ये बोल देते हैं कि प्रभु ये नहीं कर My सकता, prayers cannot be answered. मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया जा God सकता, can never do this. परमेश्वर कभी ये नहीं कर सकता। We begin to word use like never. और हम कभी ना जैसे शब्द इस्तेमाल करते What's happening there? और वहाँ क्या हो रहा We है? give up on God. हम अपना भरोसा खो देते हैं परमेश्वर पर से। And that's when it is sin. और ये है जहाँ ये एक पाप होता है, Unbelief. विश्वास ना करना। But from little faith, you can turn towards great faith, और उस थोड़े विश्वास से आप एक महान विश्वास की ओर भी बढ़ which सकते is हैं। the second stage. You can write down great faith. और ये दूसरा स्तर है जिसे हम कहेंगे महान विश्वास। Just want to give you one illustration for the lack of time. और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा समय कम होने की वजह You all से। remember Jesus and his disciples in the boat, remember? आप सबको याद है यीशु मसीह और उनके चेले उस नाव पे। By the way, scripture says he himself put them in the boat. और वचन ऐसा कहता है कि उन्होंने खुद उनको नाव पे लेकर गया In था। fact, Jesus took them through some struggling, circumstances और to strengthen their faith. कई बार प्रभु ने ऐसे संघर्ष वाली परिस्थितियों से लेकर गया क्योंकि उनके विश्वास को सामर्थ्य बना सके। So he takes them and he is sleeping in the boat. और वो उन्हें ले जाता है और वो खुद नाव में सो रहा होता You है। get this in Matthew chapter 8, 23 to 30. और ये मत्ती 8:23 से उसके आगे मिलेगा आपको। And so they are going through this storm और वो इस तूफान से गुजर रहे हैं and Jesus is sleeping. और यीशु मसीह सो रहे हैं। Now don't imagine it was a yacht. और आप उसे एक यॉट जैसा ना समझे, बड़ा जहाज नहीं Like था a वो। luxury boat and Jesus has a room and he's sleeping. और वो एक बड़ा सा जहाज नहीं था जहाँ एक कमरा था जहाँ यीशु मसीह सो रहे हैं। The waves are breaking upon the boat. और जो लहरें हैं वो नाव के ऊपर टकरा रही थी। It's a small boat. और एक छोटी नाव है। How Jesus is sleeping in that? कैसे यीशु मसीह उस नाव में सो रहे हैं? But then they are just looking at these waves and everything. और फिर वो चेले चारों ओर उन लहरों को देख रहे हैं। Now remember this, I told you to write that down, right? और आप ये याद रखें, ये मैंने आपको लिखने को Their बोला था। focus is on circumstances. उनका जो ध्यान है वो परिस्थितियों पर Their है। focus is on objects. उनका जो ध्यान है वो वस्तुओं पर है। They are seeing and hearing, वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, but they don't know who is in their boat. पर उन्हें ये नहीं पता उनके नाव में है कौन। They have seen great miracles. उन्होंने बड़े चमत्कार भी देखे। You see the lack of understanding? क्या आप समझते हैं उनकी समझ में जो कमी थी? And this is what they says when they go to Jesus. और ये ऐसा कहते हैं जब वो यीशु मसीह के पास They जाते wake him up and say, "Save us, Lord. हैं और वो कहते हैं प्रभु हमें बचा, We are perishing." हम नाश हुए जाते हैं। They don't say, "We may perish." उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नाश हो जाएंगे, They believed it. They are perishing. वो विश्वास करें कि वो नाश हो रहे हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? They didn't say, "We may die." और उन्हें ऐसा नहीं कहा हो सकता है कि हम We मरेंगे, are dying. वो कह रहे हैं हम मर रहे हैं। This is what Jesus replies to them, you of little faith. और यहाँ पे यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है, तुम जो थोड़ा सा विश्वास रखते हो, Because they were focusing only on circumstances. क्योंकि वो सिर्फ परिस्थितियों पर ध्यान दे रहे थे। Their little faith said, "Yes, I know Jesus can do, but I am not sure whether he will do this." और उनका छोड़ा विश्वास ये कह रहा था, हाँ मैं जानता हूँ यीशु मसीह कर सकता है, पर मुझे ये नहीं लगता कि वो ये कर सकता है। But Jesus rebukes
you know. पर यीशु मसीह उन्हें डांटता है। You know the story. आप ये पूरी कहानी जानते हैं। We see little faith in Matthew 6 context. और हम मत्ती 6 में के संदर्भ में भी ये थोड़े विश्वास को देखते हैं। Because they were only Jesus says, you know, the pagans think of what they will eat, what they will wear. और जो अन्य जाति हैं वो ये सोचते हैं कि वो कल क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। Again, focus on objects. और सिर्फ उनके वस्तुओं पर ध्यान है। But you of little faith, पर तुम जो थोड़ा विश्वास रखते हो, don't you see my Father in heaven provide them? क्या तुम ये देखते नहीं कि कैसे मेरे स्वर्गीय पिता हर एक चीज The प्रदान करते हैं। lilies of the field, the birds of the air. जो फूल है हमारे खेतों में और जो चिड़िया है जो उड़ रही है। There's another story और यहाँ एक और कहानी है where a man begins with little faith जहाँ एक मनुष्य ने थोड़े विश्वास से शुरू किया and then there is a battle. और फिर वो एक युद्ध में जाता है। He says, I know God can do, वो कहता है मैं जानता हूँ परमेश्वर कर सकता है, but can God do this? पर क्या परमेश्वर ये कर सकता है? I have my unbelief. उसके अंदर विश्वास नहीं था। His focus was on circumstances. उसका जो ध्यान था वो परिस्थितियों This पर was था। a father who brought a boy. और यहाँ पे एक पिता है जो एक बेटी को लेकर आता A है demonic spirit had hold of him. और एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था उसका बेटा। And his memories of past, him falling on the floor and doing things. और उसे वो सारी चीजें याद आ रही कि कैसे वो जमीन पर रेंगता और गिर जाता था। You see, he had little faith. He brought him to Jesus. और उसके पास थोड़ा विश्वास था और वो यीशु मसीह के पास अपने His बेटे को लेकर, disciples could not do it. और चेले वो नहीं कर पाए। And Jesus says, you of little faith. और यीशु मसीह वहाँ बोलते तुम जो थोड़ा विश्वास रखते You हो, unbelieving generation. तुम ना विश्वास रखने वाली पीढ़ी। And he says to Jesus, if you can. तो वो बोलते हैं अगर आप कर सकते हो यीशु। Remember that statement? आपको याद है वो क्या कहता है? If you can heal him. अगर आप इसे चंगा कर सकते हो तो। You see, he says, Jesus asked him, what do you mean if you can? और यीशु मसीह से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है कि क्या मैं कर सकता हूँ? Do you not believe? क्या तुम विश्वास नहीं करते? He said, I believe, but help me in my unbelief. वो कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ पर मेरे ना विश्वास करने पे आप मेरी सहायता करें। In your circumstances, आपकी परिस्थितियों में there is a tug of war हमेशा एक रस्सी खिंच रही होती है between your little faith and unbelief. जो है आपके थोड़े विश्वास और विश्वास ना करने के बीच में। Can you say, Lord, I believe and help me in my unbelief? क्या आप कह सकते हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मेरे ना विश्वास करने में आप मेरी सहायता करें? And Jesus helps him. और यीशु मसीह उसकी मदद That's करता why है। I said unbelief is not, little belief is not sinful. और इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा विश्वास एक पाप नहीं है। But then there is a second stage, great faith. और फिर है उसके बाद एक दूसरी स्तर जिसे हम कहते हैं महान विश्वास। You know what great faith says? आपको पता है महान विश्वास क्या कहता है? Little faith says, I know God can do, but I am not sure whether He will do this. वो कहता है मैं जानता हूँ परमेश्वर कर सकता है पर पता नहीं कि वो ये कर सकता है या नहीं। But great faith says, I know God can do and He will do it. और महान विश्वास कहता है मैं जानता हूँ प्रभु कर सकता है और वो ये करके दिखाएगा। I know He can and I know He will. वो कहता है मैं जानता हूँ वो कर सकता है और मैं जानता हूँ वो करेगा। So what is the focus here? तो यहाँ पे क्या ध्यान है हमारा? It's not on the वो circumstances. परिस्थितियों पर नहीं है, It's on God. वो परमेश्वर पर है। Are you following me? क्या आप समझ रहे हैं मुझको? So I know God has said to me मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है that He will take me. कि वो मुझे वहां लेकर जाएगा। I know He can and He will. मैं जानता हूँ वो कर सकता है और वो करेगा। I started with great faith stage. और मैंने महान विश्वास के स्तर से शुरू I किया did था not start with the little faith stage. और मैंने थोड़े विश्वास के स्तर से शुरू नहीं किया था। But faith will be always tested. पर आपका विश्वास हमेशा परखा जाएगा। And great faith और जो महान विश्वास है discovers the will of God. वो खोजता है परमेश्वर की इच्छा को। Is the will of God for me to go? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं जाऊं? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Is the will of God for me to go to South Africa? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं साउथ अफ्रीका जाऊं? If it is not His will, I am fine. अगर वो उसकी इच्छा नहीं है तो मैं ठीक हूँ। My identity is not in that. मेरी पहचान उसमें नहीं है। I know God is still God. और मैं जानता परमेश्वर अब भी परमेश्वर है।
You see, the focus is all about God. और आप देखेंगे जो आपका ध्यान है वो सिर्फ परमेश्वर के बारे में है। Great faith says, और महान विश्वास कहता है God is who He is, परमेश्वर वो है जो वो है, and He will do it what He says He will do it. और वो करेगा जो वो कहता है कि वो करेगा। The great faith focuses on the promises of God. और जो महान विश्वास है वो परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखता है। Great faith goes beyond our feeling, और जो महान विश्वास है वो हमारे भावनाओं से भी बढ़कर है, goes beyond our seeing. हमारे देखने से भी ज्यादा बढ़कर है। And the last stage, और जो आखिरी स्तर है, this is very important. और ये बहुत ही जरूरी है। You see, great faith in our saving faith is, I know God will save me. I know God will resurrect me, even though I am sinner. I know I have a place in heaven for me. और जो महान विश्वास का दूसरा स्तर है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, और हाँ परमेश्वर मुझे जिलाएगा, मैं जानता हूँ। The perfect faith is this. पर जो सिद्ध विश्वास है वो ये है, Perfect faith is resting. जो सिद्ध विश्वास है वो है आरामदायक जीवन जी, Is resting in God. कि आप आराम करें परमेश्वर में। Is perfect faith is a state of being content and peace with God. और ये जो तीसरा विश्वास है, सिद्ध विश्वास है, वो है परमेश्वर में संतुष्ट होना और उसके साथ शांति में रहना। Nothing changes in my relationship with God. कि कुछ नहीं बदलेगा मेरे रिश्ते में मसीह के साथ। It's called enduring faith. और वो है जो अंत तक रहने वाला It's called विश्वास, perfect faith. वो है सिद्ध विश्वास। Perfect faith says, और सिद्ध विश्वास ऐसा कहता okay, है, let me repeat it. Little faith says, I know He can do, but I am not sure whether He will. और थोड़ा विश्वास कहता है मैं जानता हूँ वो कर सकता है पर पता नहीं वो करेगा या नहीं। Great faith says, I know He can do, and I am sure He will do. और महान विश्वास कहता है कि मैं जानता हूँ वो कर सकता है और वो करेगा। But you know what perfect faith says? पर आपको पता है सिद्ध विश्वास क्या कहता है? It is done. कि वो हो चुका। Hallelujah. हालेलुया। Says it is done. वो कहता है वो हो चुका। It rests in the awesomeness of God. और हम आराम करते हैं परमेश्वर की उस अद्भुतता में। It rests in the promises of वो God. आराम करता है परमेश्वर के उस वादों पर, It doesn't get worrisome. और वो चिंता नहीं करता, It focuses completely on the character of और God. वो पूरी तरीके से परमेश्वर के उस चरित्र पर ध्यान It लगाता है, operates from the peace with God. और वो कार्य करता है उस शांति से जो परमेश्वर से आती है, It operates with absolute assurance with God. और ये पूरी तरीके से जो परमेश्वर पे हमारी आश्वासन है उस पे कार्य करता है। Do you see now all coming together? क्या अब आप सब कुछ साथ में आता हुआ देखते हैं? These kind of 3 stages of faith. ये 3 स्तर हैं विश्वास के। You can begin either on stage 1 या तो आप पहले स्तर से शुरू कर सकते हैं, or you begin with stage 3. या आप तीसरे स्तर से शुरू कर सकते But हैं। as a believer, पर एक विश्वासी होने के नाते we all require faith. हम सबको विश्वास की जरूरत है, Faith comes from hearing God alone. और विश्वास आता है सिर्फ परमेश्वर को सुनने से। Faith grows when you meditate on God's और word. विश्वास बढ़ता है जब आप मनन करते हैं परमेश्वर के वचन पर। From little faith to the perfect faith. वो थोड़े विश्वास से उस सिद्ध विश्वास तक। How do we grow? हम कैसे बढ़ते हैं? By meditating on God's word. परमेश्वर के वचन में मनन करने के द्वारा, Focusing on who God is. ध्यान देने पे कि परमेश्वर कौन है What God says. और क्या परमेश्वर कहता है। Who God says He is. जो परमेश्वर कहता है कि वो है, Focuses on His character. हम उसके चरित्र पर ध्यान लगाते I हैं। didn't say this to Aditya, मैंने ये बात आदित्य को नहीं बताई but थी, he was singing that song about the character of God. पर वो गीत गा रहा था परमेश्वर के उस चरित्र के In बारे में। fact, every Sunday our focus in worship of who God is. और हर संडे हम कोशिश करते हैं हम आराधना में ध्यान दें कि परमेश्वर कौन है उस पर, Because some of us come to only focus our circumstances. क्योंकि कई बार हम सिर्फ अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देते रहते हैं। Lack of finances, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, struggles. संघर्ष है। You know, we start with perfect faith. हम सिद्ध विश्वास से शुरू करें। What are the illustration of great faith? क्या है महान विश्वास के उदाहरण? A Gentile centurion man, he said,
I know God says and he will do it. जो वो अन्य विश्वासी था, जो रोमी सेना का था, उसने कहा कि मैं जानता हूँ Remember, परमेश्वर he कर said सकता to है। Jesus, don't even come to my house. You don't need to bother to come to me. वो ऐसा कहता है आपको मेरे घर आने की भी जरूरत नहीं है, I am a centurion man. मैं एक अन्य जाति व्यक्ति हूँ, If I say, people will do it. मैं रोमी सरकार में अधिकार रखता हूँ, अगर मैं कहूँगा तो वो हो जाएगा। Great faith says, God says it, he will do it. और महान विश्वास कहता है परमेश्वर कहता है और वो करेगा। But what about perfect faith? पर क्या है सिद्ध विश्वास के बारे में? You know, perfect faith is like those friends of Daniel. वो सिद्ध विश्वास है वो दानियल के दोस्तों के समान। They believe in God. वो परमेश्वर पर भरोसा They रखते थे, rest in God. वो परमेश्वर में आराम रखते थे। They say, you will throw us in fire? वो कहते हैं तुम हमें आग में फेंकोगे? Even if God doesn't save, अगर हमें परमेश्वर नहीं भी बचाता, we will not bow down. हम उसके आगे नहीं झुकेंगे। How is your faith in God? आपका विश्वास कहाँ है अभी परमेश्वर पर? Will Jesus find faith when he comes? क्या पर मसीह विश्वास को पाएगा जब वो यहाँ आएगा? Let's bow down. आइए हम अपने सरों को झुकाएं। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।